हम लोग वर्शिप जाने से पहले आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू गाइस कि हम जवान लोग जब हम लोग व्हेन वी कम टुगेदर देयर आर लॉट ऑफ यूथ हु नीड प्रेयर एज वेल। तो बहुत सारे जवान हमारे बीच में है जिनको प्रार्थनाओं की जरूरत है। तो जब आज हम लोग जब वर्शिप करने जा रहे तो ऑल्सो रिमेंबर सो मेनी यंगस्टर्स आर देयर जो आज देश में कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं या फिर देयर इन डिप्रेशन एंड फेसिंग एंजाइटी द लॉट ऑफ इश्यूज दैट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड इन दिस कंट्री और अपने बीच में भी। तो हमें पिछले दिनों में काफी रिक्वेस्ट आए थे, प्रेयर रिक्वेस्ट आए थे। तो वन ऑफ द यंगस्टर्स फ्रॉम FIM जोबिन फ्रॉम अहमदाबाद ही हैड रिक्वेस्टेड प्रेयर्स हम लोग से कि टू प्रे फॉर हिम एंड हिज फैमिली। तो आप लोग सब आज जब आराधना करते हैं तो प्रे फॉर हिम एज वेल। आपकी पर्सनल प्रेयर्स में भी उन्हें याद रखिएगा। देयर आर लॉट ऑफ यंगस्टर्स हु आर आस्किंग फॉर प्रेयर। तो अगर आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग हमें जरूर बता सकते हैं। विल बी प्रेइंग फॉर यू, वी लव टू प्रे फॉर यू। हम लोग बहुत खुश होंगे अगर आप हमसे आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करेंगे। But now is the time to worship and the worship team is ready. So let's all worship Lord in truth and in spirit. My soul breathing, I found my life when I laid it down. I put falling spirit soaring. I touched the sky, when my knees hit the ground. Found me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Come sweep me up in your love again, and my soul will dance on the wings of forever. Find me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Come sweep me up in your love again, and my soul will dance on the wings of forever. Find me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Come sweep me up in your love again, and my soul will dance on the wings of forever. Find me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Come sweep me up in your love again, and my soul will dance on the wings of forever. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. My
touch the sky, when my knees hit the ground, find me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Come sweep me up in your love again, and my soul will dance on the wings of forever. My heart beating, my soul. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touch the sky when my knees hit the ground. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. And I see many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Ooh, love so undeniable. I can hardly speak. Peace so as you call me, deeper still as you call me, deeper still as you call me, deeper still into love, love. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. One more time. Oh, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am.
जैसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। मेरी ओर से लड़ेगा, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। ओ पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। एक और बार, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम,
शुक्रिया तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा, परमेश्वर पिता आप तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया है परमेश्वर। हम तेरे सन्मुख आकर परमेश्वर अलग अलग जगह बैठकर तेरे आराधना कर सके परमेश्वर, तेरे तेरे चरणों पर हम हमारी आराधना हमारा धन्यवाद हम दे सके तुझे परमेश्वर। हम लॉर्ड वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव गिवन इन आवर लाइव्स परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज हमारे दिलों को तू जोड़ पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर, हमारे दिल में एक ही प्रार्थना होने पाए परमेश्वर, एक ही लॉर्ड एक ही हमारे दिल के अंदर परमेश्वर धन्यवाद की प्रार्थना होने पाए। आज हम ऐसी प्रार्थना करते खुदा, हम प्रार्थना करते हैं जब हम आगे बढ़कर परमेश्वर वचन से सुनने जा रहे तो हमारे दिलों को तैयार कर पवित्र आत्मा कि हम तेरा वचन से स्वीकारने के लिए नहीं परमेश्वर, हमारे जीवन में हर एक कदम को उस वचन को दिल में रखकर परमेश्वर उस पर हम चलने वाले हो सके परमेश्वर, ऐसा तू हमें बना परमेश्वर। और ये हम जब लॉर्ड 1 घंटे के लिए जब हम मिलते परमेश्वर वो मिलना हमारा व्यर्थ नहीं होने पाए परमेश्वर, लेकिन हमारे जीवन को लॉर्ड कैसे ना कैसे इम्पैक्ट करने वाला वो समय होने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते परमेश्वर। लॉर्ड आज जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर उनके लिए हम प्रार्थना करते खुदा, तू उनके साथ रहना पवित्र आत्मा, तू उनको मदद करना, तू उनके दिलों में आज पवित्र आत्मा तू उनके लिए बात कर खुदा, तू उनसे बात कर, हमें से हर एक जन को उससे तू बात कर, ऐसी हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा। हर एक जन को तेरे हाथों में सौंप दे। एक और बार लॉर्ड इस अवसर के लिए तेरा धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस वंस अगेन, इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन। वर्शिप टीम का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके साथ है। गॉड इज विथ यू एंड ही लव्स यू। एंड आप कोई भी सिचुएशन में क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है। आप शायद किसी चीज के साथ स्ट्रगल कर रहे होंगे आज, लेकिन गॉड वांट्स टू टेल यू दैट ही इज विथ यू एंड ही वांट्स टू बी देयर विथ यू। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट लीन ऑन हिम। मैं इस समय आपको यही बोलना चाहती हूँ दैट व्हाटएवर कुछ भी हो, आज आप परमेश्वर के सामने उसे रख छोड़ना। परमेश्वर आपको सचमुच अद्भुत कार्यों की तरह आपको ले जाएगा। So now I just want, we have a special guest today, and guest तो नहीं बोल सकते because every year he's here in उदयपुर। हम लोग हर साल जब हमारा यूथ कैंप होता है तो VBS टीम के साथ हमारे साथ ये स्पेशल खास व्यक्ति जो आज हमारे साथ वचन बांटने आ रहे हैं वो हमेशा आते हैं। So I just want to welcome brother Sylvester Stalin from Bangalore। वो बच्चों के साथ और टीनेजर्स के साथ काम करते हैं, and he'll be here sharing his testimony as well as he'll be sharing the word. So why don't we all welcome him with a huge round of applause. All right, good evening. उदयपुर में सभी का प्रणाम करता हूँ। So I will try and speak as much as possible in English, and I'll try and put some Hindi also in between. कोशिश करता हूँ जितना हो सके मैं हिंदी का प्रयोग करूँगा। So I will try and mix both Hindi and English. So bear with me, guys. आज बहुत सारे लोग जो मैं देख रहा हूँ, मैं पहचान पा रहा हूँ, और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आप लोग बड़े हो चुके हैं। बहुत सारे लोग बड़े हो चुके हैं, right? So it's so nice to see everybody grown up, and we praise God for that. Eben is there. Hi, Eben. Remember we left you and ran away one night. So a lot of fun, right? So
Let me start with telling a little bit about me. So I come from a Christian family. एक ख्रिस्ती परिवार से मैं हूँ. जब मैं एक छोटा बच्चा था तो चर्च पे जाना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, ये चीजें बहुत मतलब ऑर्डिनरी था, साधारण था. I'm used to that because I was born and brought up in a Christian family. But in the year 2002, everything changed. 2002 में जब मैं चर्च पे बैठा था, तब एक बहन ने मुझे मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने मुझे संडे स्कूल लेके गए थे. और उस समय मैं I think I was studying in 10th standard. I think I was in 10th standard at that time. So she took me. So I went to Sunday school when I was in 10th standard. सोच लीजिए. So I finished. I was supposed to leave Sunday school, but I was getting into Sunday school. You know, so very funny. But that situation, that action of that sister taking me to Sunday school actually changed my life. So परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर हमारे लिए कौन है, मेरे लिए कौन है. मैं संडे स्कूल में जब मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था, तब मैं जाना. I understood then who God is for me personally, and I came to the Lord in 2002. Right, and then from then no turning back. और बात ये है कि उस समय से आज तक मैं संडे स्कूल को नहीं छोड़ा, और संडे स्कूल भी मुझे नहीं छोड़ा. Okay, so since then I never left Sunday school, and Sunday school hasn't left me. So in the year, so to make the long story short, I went on to become an engineer. I was working for Infosys Technologies. Infosys आपको आप पहचानते होंगे. Working in Infosys as a software engineer, but God called me and said, Sylvester, ये जो तुम कर रहे हो, ये मेरे लिए नहीं है. He said, this is not for me. अगर तुझे कुछ करना है, तो मेरे लिए करना है. If you have to do something, then you have to do for me, not for yourself. तो जब मैं Infosys में काम कर रहा था, तो मैं एक प्लान बना के रखा था. I had made a plan for my life. और मैं सोच के रखा था कि इस साल में मैं एक घर बनाऊंगा, और 5 साल के अंदर मेरा शादी हो जाएगा. ये सब प्लान्स मैंने बना के रखा था. लेकिन परमेश्वर ने ये पूरा प्लान को लेके डस्टबिन में डालने के लिए बोला. God told me to take all your plans and throw it in the dustbin. And he said, this is not what I want you to do. I don't want you to simply build your house. I want you to build my house. I don't want you to simply find a partner for yourself. वैसे my wife is sitting next to me. Esther, you want to say hi? All right. So I don't want you to find just a partner for yourself, but I want you to partner with me. परमेश्वर ने मुझसे बोला कि तू मेरा पार्टनर बनना है. हम दोनों एक साथ मिलके परमेश्वर के God's kingdom we have to build. परमेश्वर ने बोला. और in 2015 जो भी मैं काम कर रहा था, वो सब छोड़ के in 2015 मैं फुल टाइम मिशंस, बच्चों के बीच में, यूथ के बीच में काम करने के लिए परमेश्वर के लिए मैं अपना जीवन फुल टाइम मिशंस के लिए दिया. और मेरा जो कॉलिंग है वो साउथ इंडिया में नहीं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया था. तो ऐसा हुआ कि आई थिंक 2015, that's when I came first time to Udaipur.
2015 और उस समय VBS करने के लिए मैंने आया था, तो बहुत अच्छा लगा। और उस समय से लेके आज तक परमेश्वर ने जो भी मैं प्लान बना के रखा था वो सब it has come to be, but without any effort from my side. मैंने अपने प्लान्स के लिए कुछ एफर्ट नहीं डाला, मैं सिर्फ परमेश्वर की सेवा में लगा। ने मेरा प्लान को पूरा किया है। तो I am married, you can see, and there's a house that we live in. We thank God for that. So God takes care of all the other plans when we are thinking about His plan. So that's a small testimony that I want to share a little bit about my life with all of you. So with that note, I just want to ask, how much time do I have? It is 6:15 now. So how long can I go? Somebody help me with that. You can 6:35. Okay, very good. Thank you. So very good. So आज का टॉपिक जो है VBS टॉपिक जैसा लग रहा होगा शायद आपको, चेक पोस्ट है ना। चेक पोस्ट ये कौन सा टॉपिक है, आप लोग सोचते होंगे व्हाट इज चेक पोस्ट। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और अगर इस प्रश्न का आंसर आपको पता है तो चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ओके, सो लेट्स सी हाउ मेनी आंसर्स वी कैन गेट। ऑलराइट, सो चेक पोस्ट में क्या होता है, व्हाट हैपेंस एट अ चेक पोस्ट। अगर आपको आंसर पता है तो चैट बॉक्स में टाइप करके भेज दीजिएगा। ओके, वेरी गुड। चेक पोस्ट में चेकिंग होता है। ऑलराइट, चेक पोस्ट में हेलमेट चेक करते हैं। ओके, वेरिफिकेशन, गुड। कैश, identification, very good. Entry, very good answers. तो सिंपल सा जवाब ये है कि चेक पोस्ट में चेकिंग होता है, लेकिन क्या चेकिंग होता है? Alright, so 3 things. We're going to look at 3 things. Okay, point number 1, चेक पोस्ट में पहला जो है पहचान करना। चेक पोस्ट में क्या होता है? पहला पॉइंट जो है पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन। ओके, आइडेंटिफिकेशन, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, चेक पोस्ट में क्या होता है? इंस्पेक्शन होता है। ओके, निरीक्षण, इंस्पेक्शन, निरीक्षण होता है। ओके, इंस्पेक्शन। पॉइंट नंबर 3, चेक पोस्ट में क्या करते हैं लोग? कंफर्म करते, कॉन्फर्मेशन, पुष्टि कर, confirmation. Okay, so 3 things. Point number 1, पहचान, identification. Point number 2, what is point number 2? Inspection, निरीक्षण. Point number 3 is confirmation, पुष्टिकरण. Okay, तो हमारे लिए भी अपने जीवन के लिए एक चेक पोस्ट की जरूरत है। Okay, each one of us needs a check post. मान लीजिए कि अगर चेक पोस्ट नहीं होता है तो क्या होता है? स्मगलिंग हो सकता है कि नहीं? If there is no check post from one country to another country, there is no checking happening. From one state to another state, there is no checking happening, then a lot of wrong things can happen. गलत काम हो सकता है जब चेकिंग नहीं होता है, जब चेक पोस्ट नहीं होता है। जैसे कि गुजरात और राजस्थान के बीच में चेक पोस्ट बहुत अवश्य है, क्योंकि गुजरात में क्या है? लिकर अलाउड नहीं है कि नहीं? दारू अलाउड नहीं है, बेचते नहीं गुजरात में, अहमदाबाद में, लेकिन राजस्थान में लोग बेचते हैं। तो बहुत सारे स्मगलिंग होता है, आप जानते होंगे। लॉट ऑफ स्मगलिंग हैपेंस, ऑलराइट, because check post is weak. लोग पैसे देके क्या करते हैं? स्मगल करते हैं।
लेकिन वैसे ही हमारे जीवन में भी चेक पोस्ट की जरूरत है, ताकि गलत चीजें हमारे जीवन के अंदर नहीं घुस पाए, ताकि गलत चीजें हमारे जीवन में नहीं आ पाए। तो हमारे लिए भी चेक पोस्ट की जरूरत है। तो हमारे लिए चेक पोस्ट क्या हो सकता है? What can be our check post for us? Alright? तो इसीलिए परमेश्वर ने उनके पवित्र वचन हमारे लिए दिए हैं। परमेश्वर, जब हम इस पवित्र वचन को हर दिन पढ़ते हैं, पवित्र वचन के हिसाब से हम अपने जीवन चलाते हैं, पवित्र वचन के ऊपर हम अपने जीवन को when you build your life upon the word of God, then we are very careful about how our life is. Okay, so God's word is a check post, acts like a check post for our life. Okay, what are you saying? Where does the Bible say about it? Okay, so Bible में 2 Timothy 3:16, 2 Timothy 3:16 ये बोलता है कि all scripture is God's breath. अगर मैं हिंदी में पढ़ता हूं, तो अगर किसी ने ओपन किया है तो आप पढ़ सकते हैं, अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। 2 Timothy 3:16। All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Very good. Thank you. संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। Okay? So the scripture is God's breath. All right? परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। The scripture is God's breath, God inspired. All right? तो हम बाइबल किस लिए उपयोग कर सकते हैं? नंबर 1 is उपदेश देने के लिए, टू टीच। बाइबल से हमें क्या मिलता है? उपदेश मिलता है। द बाइबल टीचेस अस, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, समझाने के लिए, द बाइबल गिव्स अस नॉलेज ऑफ व्हाट इज गुड, व्हाट इज इविल। राइट? नंबर 3, सुधारने के लिए, टू मेक करेक्शंस, टू मेक corrections. The Bible helps us make corrections in our lives, and to learn what is right, what is good, what is pleasing to the Lord. So the word of God is acts like a check post for us. Okay, तो मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर आपसे कोई आके पूछता है आप कौन हैं, तो आप क्या बोलेंगे? What will you say when somebody comes to you, walks up to you and asks you, who are you? What will you say? Probably you will say, I am Sylvester. I will say, I am Sylvester. Or we might say, I might say, I am an engineer, or I am from Bangalore, you know. So these are some things that, yes, like some of you say, somebody says, I am God's creation. Brilliant. Very good answer. Okay. But if you say that to anybody else, they might make fun of you. What is this fellow saying? Okay. Because the world does not understand. Okay. But you introduce yourself. But who you are, you will only know it by knowing the word of God. Who are you from God's perspective? Who are you from God's eyes? All right, from God's understanding, who are you? That is what is important. So जैसे मैंने बोला, पहला जो काम चेकपोस्ट में होता है
वो आइडेंटिफिकेशन। ओके, जब परमेश्वर का वचन हमारे लिए चेक पोस्ट होता है तो हम ये जान सकते हैं कि हम कौन हैं। कहाँ लिखा है बाइबल में कि हम कौन हैं? Okay, I'm just going to give you some references. You can, after this session, you can probably go back and read it and try and understand what the Bible says about you. So identity, identification. How does the Bible identify you and me? From Colossians 3:12, Colossians 3 अध्याय 12वीं वचन ये बोलता है कि you are dearly loved. Colossians 3:12 says that you are dearly loved. Romans 4:7 says that you are forgiven. Okay, you are forgiven. John 15:19 says that you are chosen. You are a chosen generation. Okay, 1 Peter 2:9 says you are a royal priesthood, a holy nation. Right? Psalm 17:8 says you are the apple of God's eye. You are the apple of God's eye. Matthew 5:14 says you are the light of the world. You are the light of the world. Romans 8:17 says that you are heirs with God and co-heirs with Christ. John 15:14 says that you are God's friend. तो जब कोई हमसे पूछते हैं कि हम कौन है, तो हमारा सही पहचान सिर्फ बाइबल हमें बताती है। Okay, only the word of God gives us the right identity. Now, why am I saying this? मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इन दिनों में जब हम लॉकडाउन में हैं तो बहुत सारे लोग अकेलापन महसूस करते हैं। A lot of people feel very lonely. You don't meet anybody outside. You don't meet your friends. अगर लॉकडाउन नहीं होता है, अगर ये कोरोना कोविड का सीजन नहीं होता है, तो हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, तो समय बिताते हैं, तो ऐसी चीजें हमें महसूस करने के लिए नहीं मिलता है। जब हम अकेले रहते हैं तो बहुत सारे लोग अकेलापन महसूस करते हैं। आप लोग न्यूज़पेपर्स में पढ़े होंगे कि सुसाइड रेट्स बहुत बढ़ गए, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कौन है, ये क्या हो रहा है, इस समय में हमें क्या करना है, वो सब समझ में नहीं आता है। और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को क्या है, स्टडीज उबड़ खाबड़ हो चुका है, क्या करना है, बहुत कंफ्यूजन में लोग जीवन बिता रहे हैं। बहुत सारे लोगों काम नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारे लोगों को काम से निकलते होंगे। Okay, so a lot of people have lost their jobs and things. So you start feeling very lonely. You start feeling like a loser. महसूस करती मुझसे कुछ नहीं होने वाला है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और हम परमेश्वर को क्वेश्चन करने के लिए शुरू करते हैं। परमेश्वर, ये सब सिर्फ मुझे क्यों हो रहा है? कभी कभी हम क्वेश्चन करते हैं, परमेश्वर ये सब मुझे क्यों हो रहा है? इस समय में मुझे ये सब मुझे क्यों सहना है? So we ask a lot of these questions, और हम अपना आइडेंटिटी खो रहे हैं, और उसके ऊपर शैतान भी बहुत सारे डाउट कंफ्यूजन हमारे दिमाग में डालता है। तो जब पवित्र वचन हमारा चेक पोस्ट होता है, तो हमारे आइडेंटिटी, हमारा पहचान, सही पहचान हम समझ सकते हैं। अगर आप क्वाइट टाइम नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे हैं, प्रार्थना के लिए हम समय नहीं रख रहे हैं, या बाइबल पढ़ने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, बाइबल स्टडी के लिए समय नहीं निकालते हैं, तो ये सब कंफ्यूजन्स हमारे दिमाग में आ जाता है।
और अपना आइडेंटिटी हम खो सकते हैं। तो इसीलिए जब पवित्र वचन हमारा चेक पोस्ट होता है तो हमारा आइडेंटिटी जो है हम कभी नहीं खोएंगे, क्योंकि हमारे आइडेंटिटी इस दुनिया में नहीं है, इस जगत में नहीं है। हमारे आइडेंटिटी जो हमारे दोस्त लोग हमें बताते हैं वो नहीं है। हमारे आइडेंटिटी जो हमारे माँ बाप हमें दिए हैं वो नहीं है। हमारा सही पहचान जो बाइबल बताता है, जो परमेश्वर बताता है, वो ही हमारा सही पहचान है। तो आइडेंटिटी चेक पोस्ट से हमें आइडेंटिटी मिलता है। तो परमेश्वर का वचन हमारा आइडेंटिटी रहना है। सेकंड, इंस्पेक्शन। मैंने बताया था सेकंड पॉइंट जो है इंस्पेक्शन है। 5 मिनट बाकी है, 6 मिनट, तो मैं कोशिश करता हूं खत्म करने के लिए। ओके, सेकंड पॉइंट है इंस्पेक्शन। ओके, अगर हम 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 वर्स 9 जब हम पढ़ते हैं, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 वर्स 9, तो उसमें लिखा है कि the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to him. Okay, क्रॉनिकल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? इतिहास, दूसरा इतिहास है क्या? What do you say for chronicles in second? इतिहास। तो इतिहास का दूसरा पुस्तक में 16वां अध्याय 9 वचन। Okay, so it says the eyes of the Lord scan the whole earth looking for those whose heart is fully committed to him. So God is always looking. परमेश्वर हमेशा हर समय ये देखना चाहता है कि कौन है जो मुझे चाहता है सच्चे दिल से, पूरे दिल से। कौन है जो मुझे चाहता है? Who desires me? Who is committed to me? God always looks for that, and he strengthens those whose hearts are committed to him. और तो इंस्पेक्शन, परमेश्वर इंस्पेक्ट करता है। और जैसे हमने 2 तिमोथी में अभी पढ़ा कि यूजफुल फॉर टीचिंग, राइट, यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो हमें जब परमेश्वर का वचन चेक पोस्ट बन के हमारे जीवन में रहता है तो हमें हम ये जान सकते हैं कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, कहाँ पे हमें सुधारना है। We understand that we get to know where we have to change, where we have to make that, where we have to watch out. What is it that we are doing that is not right? So the Word of God helps us in inspecting our lives, in inspecting our life. And God also constantly is looking for those whose hearts are committed. So is your heart committed to Jesus? Okay, is the question that you need to ask. There are 76 people on this call. कभी कभी ऐसा होता है कि इतना सारे जूम कॉल्स हम हर दिन अटेंड करते हैं। काम के लिए जूम कॉल्स, स्टडीज के लिए जूम में होता है, तो हम हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। अभी आज के दिनों में हम हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। तो ऐसा हो जाता है कि हम थक जाते हैं, जूम से हम थक जाते हैं, है ना, ऑनलाइन रहने में हम थक जाते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि इतने सारे लोग परमेश्वर के वचन सुनने के लिए आज यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप जब कमिटेड होते हैं तो परमेश्वर भी आपके लिए 100% कमिटेड रहेंगे। तो inspect your life, see where you have to change. The last point is confirmation. All right, last point is confirmation. So so your attitude towards God confirms who you are. Right? Your attitude towards God confirms who you are. Whether you belong to Jesus or whether you belong to the devil. Okay? So when you belong to Jesus, अपना पासपोर्ट में, जीवन का पासपोर्ट में, heaven, to enter heaven, God gives you that right, that stamp
of inheritance, right? So I want to encourage all of you to have the word of God to be the checkpost of your life, all right? To identify, to inspect, and to confirm who you belong to. Whether you belong to Jesus, whether your identity is in Jesus, whether your life is confirmed in Jesus or to something else. Shall we pray? फादर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए। जितने भी नौजवान लोग इस कॉल में प्रेजेंट हैं परमेश्वर, उन लोगों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और खुशी की बात यह है कि जितना भी ऑनलाइन में हम बिजी रहते हैं, इन लोगों ने आपके लिए समय दिया है परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूं कि आप हम सभी को, इन सभी नौजवानों को आप आशीष दें, ताकि ये लोग और भी आपके विषय में, आपके वचन में और भी बढ़े। Thank you, Lord, that you have given your word to be a check post for our lives. Help us so that our identity will be in you. हमारे पहचान आप में हो परमेश्वर, Lord, and that we will inspect our lives every day, that we may walk in your ways every day, and Lord, that we may be confirmed that, Lord, we are your children. Thank you once again for this beautiful time. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you. Thank you, brother Steve. Thank you, brother Sylvester, for sharing the word. आपने इतना अच्छा वचन हमारे साथ बांटा. Thank you so much for that. Thank you. आप बैंगलोर से हमारे साथ जुड़े, आपने टाइम निकाला. Just want to encourage all the youngsters कि इस हफ्ते let's take this challenge of inspecting अपन कहाँ पर है. Like, what is our identity? Let's find our identity in Jesus, in the Word of God. तो आप लोग वचन पढ़िए, वचन सिर्फ पढ़ने वाले ही नहीं, लेकिन वचन के अनुसार चलने वाले भी बनिए. So thank you so much once again, brother Sylvester and sister Esther. We are so privileged कि आप लोग आज हमारे साथ यूथ मीटिंग में आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े. So before we end this meeting, हमारे we had certain requests. एक prayer request आया था त्रिवेंद्रम से, हमारे ही FIM फैमिली से हैं अभिषेक रॉबिन एंड केविन रॉबिन. उन्होंने एक रिक्वेस्ट रखा है कि उनके एरिया के लिए दुआ करना, एज इट इज आई थिंक इट्स इन द कंटेनमेंट एरिया, प्लस उनकी ग्रैंडमदर के लिए शी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, सो दे हैव रिक्वेस्टेड दैट. एंड मैं चाहूंगी क्रिस्टी भाभी इस विषय के लिए, प्लस हमारे हर जवानों के लिए, और इन मीटिंग्स हर संडे हम जो मीटिंग्स है हमारे, उस मीटिंग्स में और हम यंगस्टर्स परमेश्वर को और जाने, नजदीकी से करीबी से हम जाने, ऐसा भी क्रिस्टी भाभी आप दुआ करें. आइए हम मिल करके प्रार्थना करें. परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं आज शाम के परमेश्वर सुंदर गैदरिंग के लिए. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, और सिल्वेस्टर और एस्थर के लिए परमेश्वर प्रभु जिनकी गवाही के लिए धन्यवाद. कितने अद्भुत तरीके से आपने प्रभु आपकी सेवा के लिए उन्हें चुना, उन्हें बुलाया, और प्रभु जी जो भी तेरे पीछे आए हैं कभी भी वे लज्जित नहीं हुए. एक और बार परमेश्वर इस गवाही से आपने हमें सुनाया कि जिन्होंने भी तेरी ओर देखा उनका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ, उनके हर एक आवश्यकताओं को आपने पूरा किया. उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर. आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद. तुझ में हम कौन हैं प्रभु जी, संसार के बवंडर के अंदर हम ये भूलने ना पाए कि परमेश्वर तूने हमें बुलाया है, नाम लेकर बुलाया है, और प्रभु हम तेरी नजरों में परमेश्वर तेरी आंखों की पुतली के समान अपने हथेली में तूने हमें संभाला है. इस संसार में परमेश्वर ज्योति के समान, नमक के समान परमेश्वर आपकी खुशबू फैलाने के लिए प्रभु आपने हम में से हर एक को चुना है, हर एक जवान को नाम लेकर बुलाया, और आपने प्रेम किया परमेश्वर. जैसे हमसे संसार प्रेम करती है वैसा नहीं, जो प्रभु जी 1 या 2 दिन का प्रेम नहीं, परंतु एक अनंतकालीन प्रेम आपने हम सबसे किया है. उसके लिए हम
धन्यवाद देते हैं, और उसके साथ साथ आपने हमें कीमती वायदा भी दिया है, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया हर एक जवान के ऊपर आज शाम को तेरी आशीष और अनुग्रह। प्रभु जी, त्रिवेंद्रम से प्रभु हमारे अभिषेक और प्रभु जी आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु उनके ग्रैंड मदर के लिए विशेष हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। वो अपने शरीर में प्रभु जी दुख सह रही है, प्रभु आप उन्हें अनुग्रह दे, कृपा दे परमेश्वर, उनके दुख और दर्द से प्रभु आप उन्हें छुटकारा दीजिए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हालेलुया, प्रभु इस कोविड से भी प्रभु आप प्रभु जी वहां के लोगों को, हमारे इस रॉबिन परिवार को परमेश्वर आप सुरक्षा दीजिए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जी हमारे बीच में जॉबिन है, उनकी मम्मी, और प्रभु जी अहमदाबाद से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, तेरे प्रभु जी चंगाई के हाथ को हम मांगते हैं। कई लोग प्रभु जी इस बीमारी से ग्रसित है, हर एक के ऊपर आपकी चंगाई के हाथ, आपके आश्वासन के हाथ, कोई भी अकेलेपन से परमेश्वर परेशान नहीं होने पाए, कोई भी परमेश्वर निराश नहीं होने पाए, तुझ में वे आनंदित होने पाए। प्रभु जी अद्भुत परमेश्वर हालेलुया आपके कर उनके जीवनों में कार्य करने पाए, और प्रभु जी स्वर्गीय गीतों से तू उनके दिल और मन को तू भर, उनके मुंह को तू भर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हमारे हर एक जवान को तेरे लहू में हम छिपाते हैं। प्रभु जी हमें जहां भी प्रभु जी इस भारतवर्ष में जहां जहां से जवान लोग जुड़े हैं, हर एक को आपके राज्य के लिए आप इस्तेमाल कीजिए, इसकी हम प्रार्थना करते हैं। एक अद्भुत गवाही के लिए हर एक को आप इस सप्ताह भर परमेश्वर वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आपके साथ संगति करने के लिए, समय बिताने के लिए परमेश्वर स्वर्गीय बातों को, वाणी को सुनने का अनुग्रह अभिषेक प्रदान कीजिए। आपने प्रार्थना को सुना से धन्यवाद। सिल्वेस्टर और प्रभु जी सर को, उनकी सेवकाई को, बच्ची को, और जो कुछ भी लोग करते हैं उसके ऊपर आपकी आशीष और अभिषेक को हम मांगते हैं। प्रार्थना सुनने से धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सृष्टि भाभी, थैंक यू हम लोग सबके लिए दुआ करने के लिए। एंड जाने से पहले एक अनाउंसमेंट है, इस हफ्ते भी आप लोग हमारे अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हमें फॉलो नहीं किया है तो प्लीज यू फॉलो अस फिलाडेल्फिया यूथ मूवमेंट, आप लोग टाइप करना और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करना। तो एवरी वेडनेसडे हम लोग के पास एक स्पेशल सरप्राइजेस है आप लोग के लिए। वी हैव हमारी ही FIM फैमिली से प्लस FIM फ्रेंड्स, जो हमारे फ्रेंड्स है वो लोग भी अपना उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे यू कैन showcase your talents, the gifts that the Lord has placed in you। आप लोग सभी के जीवन में, everyone individually, सभी के लाइफ में एक गिफ्ट परमेश्वर ने रखा है, and we are encouraging you to harvest into it, to tap in your potential, tap in your gift and use it and show and use it and encourage it, use it for encouraging others। हम लोग सिर्फ डिस्प्ले के लिए नहीं है कि हमारे पास है, पर दूसरों को एनकरेज करने के लिए एंड सारी महिमा खुदा को देने के लिए हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म आपके लिए क्रिएट किया है। तो प्लीज अपना अगर आपके पास कुछ भी टैलेंट हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो पॉटरी मेकिंग हो, चाहे आपको गाना गाना हो, या फिर आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, कोई भी टैलेंट है हमारे पास, कोई लिमिटेशंस नहीं है उसकी। लेकिन इफ यू हैव अ टैलेंट, डू कॉन्टैक्ट अस एंड वी विल गेट बैक टू यू विद इट। तो दिस वेडनेसडे लुक आउट, वॉच आउट कि कौन आ रहा है और क्या कर रहा है। And plus we have another news coming in this week, so aap log keep watching out for updates on Instagram FIM। But and also aaj hamare beech mein Jobin bhi hai, so we praying for you brother and praying for your family, so keep your hopes up high, and so we'll see you next week। इसी इधर ही हम लोग 5:30 PM को आपसे फिर से मिलेंगे। So encourage your friends to come in, आपके friends को invite करिएगा, and follow us on Instagram and Facebook। We will see you guys, have a good and blessed week।